One column is of 50 centimeter, another column is of 30 centimeter, and columns are attached with the footing. Whereas in the previous problem, some projection was there. That is the difference. Rest of the things remain same. Here, side of the column is 50. Here it is 30. Means two different sides are there. Okay, different columns are there. And now area is given by total load divided. So I will fix the length first. Then I will find the area. So while fixing the length, you see here. While fixing the length, I will tell you. The column to column, this is column to column distance is not center to column, end of the columns are 6 meter apart. It is given, end of the column are 6 meter apart, has been given to you. Now this is 50 centimeter, means the central distance for this column is 25 centimeter or 0.25. 25 centimeter or 0.25. This is 30 centimeter, means half of this one is 0.15. So center to center column distance is 6 meter plus 0.25 plus 0.15. 6 meter plus 0.25 plus 0.15. So totally it is 6.4 meter from center to center. 6.4 meter from center to center. मालूम हुआ क्या? 6.4 meter from center to center. 6.4 meter from center to center is the distance. ये सब आपको प्रोजेक्शन वहां रखना था या नहीं है, बस यही करना है. और एंड टू एंड टोटल लेंथ ऑफ द फुटिंग कितना होता? कॉलम के एंड से 6 मीटर है, ये 50 सेंटीमीटर का है, मतलब 5.5 मीटर, ये 0.3 मीटर. Total end of the footing end to end is total length is 6.8 meter. 6.8 meter. बाकी का सब सेम है. पहले एरिया निकालो आप. एरिया ऑफ द फुटिंग कैसा निकालते? टोटल लोड ऑन द फुटिंग. Total load on the footing divided by soil bearing allowable soil pressure. So total load is, one is 5,000, another is 3,000. 5,000 by 3,000 divided by 400. It is 20 meters square. Area of the footing is 20 meter square. Area of the footing is 20 meter square. Now taking moment about the CZ from resultant at the center of the large column we are taking. So resultant is 5,000 plus 3,000. 5 plus 3,000 into x1. 5 plus 3,000 into x1 is equal to 3,000 into 6.4. So this 3,000 into 6.4. So now if you simplify, you will get x1 is equal to 2.4. Means CZ from the center of this column is 2.4. But what I want is CZ from the end of the footing. So center of the footing is 0.25. 0.25 plus 2.4. So x2 that is from here to here CZ is 2.65. That CZ is 2.65. This was known to you. This was known to you. Once you know the 2.65, so rest of the things you know, area is equal to A plus B by 2 into L. There I have taken B1 plus B2. Here A plus B by 2. If you simplify, you will get the equation A plus B is equal to 5.8823. A plus B is equal to 5.8823. Then CZ of this trapezoidal is given by x is equal to L by 3 2A plus B divided by A plus B. X2 is equal to L by 3 divided by 2A plus B divided by A plus B. And if you simplify this one, you will get A plus B is equal to one equation got. One more equation you will get somewhere here. B is equal to this much A something. And if you substitute that in this equation and solve, so what you get is B is equal to 4.889 meter and A is equal to 0.994 meter. B is equal to 4.88 meter, A is equal to 0.99 meter. ये answer है, ये procedure है, and this was different, I mean somewhat different from the previous one. Procedure is everything is same. वहां पर footing के अंदर थे column, यहाँ पर footing के साथ attached है. Column क्या है यहाँ पर? Footing के साथ attached है. This was the difference. This was the difference.
I hope things are clear now. So no need of, I mean, any problem here. So this completes a combined footing. स्ट्रैप और रैफ्ट में आपको बता चुका हूं, उसके डिजाइन जरूरत नहीं है क्योंकि सब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस है। ये एक याद रखो बस है, इफ यू आर इंटरेस्टेड फर्दर, देखिए जब सिलेबस खत्म होगा मैं आपको तब स्ट्रैप और आइसोलेटेड का भी डिजाइन बताऊंगा। एमटेक के लड़कों को पढ़ा चुका हूं लेकिन आपको जरूरत नहीं है। सो दिस मच यू रिमेंबर। सो दिस कंप्लीट्स shallow foundation. This completes shallow foundation. See here, you people are not attending the classes. अब मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ता है आप लोगों को। और मैं कोई अगर से आप नहीं आ रहे क्लास को तो बोलो उनको, you may be topper, you may be bottomer, whatever you are. I am not going to give the marks this time. Only 20 students are present today. I am starting a new chapter. See, this corona is, I mean, हेल्थ तो सबका खराब ही कर रहा, फ्यूचर भी पूरा खराब कर दे रहा आपका। पीपल आर एनीवे, उनको गारंटी हम पास हो रहे कैसा भी, और ना आपको इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। एनीवे दिस कंप्लीट्स दी shallow foundation. This completes shallow foundation. So now I will go for next topic, next very important one, that is which one? Pile foundation. Now we will go for pile foundation. I think pile is not here, it is here. So as I told you in the beginning itself, there are only two topics which are very important in your syllabus. There are only two topics which are very important in your syllabus. One is bearing capacity, another is pile foundation. One is bearing capacity, another is pile foundation. So bearing capacity maximum detail में गया हूं मैं, कम से कम 40 क्लास लेके खत्म करा उसको, तो ये तो जल्दी किया था मैं shallow foundation, but bearing capacity maximum हर टाइप के प्रॉब्लम लिया मैं आपको. It is up to you now. Now I want to go in detail for pile foundation also because your exam date is not decided yet. I think you haven't paid the fees also yet, so exam date is totally uncertain. So let us see when it is going to happen. So that's why I'm going little. Once exam date is declared, time is little, means I can complete those chapters. देखिए अब फर्स्ट चैप्टर में तो, फर्स्ट यूनिट में तो 3 चैप्टर है, एक है सॉइल एक्सप्लोरेशन, दूसरा बेयरिंग कैपेसिटी, तीसरा डिफिकल्ट सॉइल. तो तीसरा तो बहुत छोटा है और पहला भी कोई पूरा थ्योरी है थोड़ा बहुत. तो दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा था, उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं. ये मान के चलो कि आपका पहला यूनिट हो गया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर में एक या दो दिन में लेके खत्म कर देता हूँ उसको. थ्योरी है, आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और आप पढ़ लो उसको, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं. तो सेकंड पार्ट में 4 चैप्टर्स है. एक है शैलो फाउंडेशन जो कि हो गया, और उसके बाद दूसरा बड़ा चैप्टर है पाइल फाउंडेशन जो सबसे बड़ा है, और उसके बाद शीट पाइल वॉल्स एंड वेल फाउंडेशन है, और उसके बाद है और कौन सा है लास्ट में, शीट पाइल वॉल्स है, वेल फाउंडेशन है, और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है. तो सिलेबस अभी बहुत है, लेकिन you need not worry about the syllabus, that I will complete. Okay, so now what is pile foundation? What is pile foundation? What is pile foundation means, I will tell you. Before is this also I told you there are 2 types of foundation. देखिए ये चैप्टर जरा आप डिटेल में पढ़िए, इसका डिजाइन देखिए, इसके एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का देखिए, टाइप देखिए, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है देखिए. इट इज वेरी यूजफुल for your field work as well as any competitive exams. It is very useful for any competitive exam. Then now the question arises, what is pile foundation? So foundation I told you, it will take all the entire load of the superstructure. Foundation किसको बोलते हैं हम? सारा superstructure का लोड जो ले लेता हूं. अब 2 टाइप के फाउंडेशंस थे, एक था shallow foundation और दूसरा था pile foundation, सॉरी डीप फाउंडेशन. एक था शैलो फाउंडेशन, दूसरा था डीप फाउंडेशन. शैलो फाउंडेशन में हम क्या मान के चलते हैं कि आपका जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर है या उससे कम है, बट द थिंग इज पाइल डीप फाउंडेशन मींस द फाउंडेशन वेयर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज क्वाइट मोर कंपेयरिंग टू इट्स विड्थ.
विड्थ से अगर से बहुत ज्यादा है, विड्थ से अगर से बहुत ही ज्यादा है, विड्थ से अगर से बहुत ही ज्यादा है, देन इट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। देखिए डीप फाउंडेशन हमको एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना है, याद रखो डीप फाउंडेशन हमको अवॉइड करना है, पाइल फाउंडेशन हमको लेना नहीं है। आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट द पाइल फाउंडेशन, हमको अवॉइड करना है, लेकिन सरकमस्टेंसेस हमको मजबूर कर देते। आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा बहुत बड़ा वाटर टैंक है, आपका बिल्डिंग मराइन स्ट्रक्चर है, या समुद्र के किनारे है, पानी के किनारे है, तो ब्रिज है आपका, तो ऐसे टाइम में आपको पाइल फाउंडेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। डीप फाउंडेशन के लिए, डीप जनरली क्या होता है आजकल, डीप मतलब जनरली पाइल ही प्रेफर करते हैं, इसलिए पाइल ही बोलते हैं, तो आपको डीप फाउंडेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। देखिए बहुत अनइकोनॉमिकल है मैं मानता हूं, बट उसका यूटिलिटी देखो आप, अगर यूटिलिटी है उतने सारे लोड्स वो ले रहा, तो देन यू गो फॉर पाइल फाउंडेशन। So before that, you apply some ground improvement techniques and try to improvise the property or bearing capacity of the soil. You try to improvise its bearing capacity. If it is improved, it is well and good. You do not go for pile foundation or deep foundation. But the thing is, even after ground improvement technique also, and so sometimes load is also more. Even if you apply ground improvement technique also, if load is more, whatever the load of superstructure is coming on the footing, if it is more, we go for pile foundation or deep foundation. पाइल फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। आखिर पाइल रहते क्या है, मैं आपको बताऊं, पाइल मतलब एक सिलेंडर, कंक्रीट का या किसी भी मेटल का, जनरली कंक्रीट का ही रहता है, ये कंक्रीट का एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को रख के ऊपर से उसको मारते, ऐसे 4 5 6 सिलेंडर हो जाते, उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का वजन डाल देते। समझ रहे आपको, बहुत डीप, ये इमेजिनरी है सिर्फ, आपको पाइल बोल तो कुछ तो छोटा मोटा लग रहा होगा, बहुत बड़े बड़े 60 टन 70 टन का लोड लेते हैं, तो अंदाजा लगाओ आप, 60 टन मतलब कितना मालूम है आपको, 60 टन कितना रहता है, चुप फू बोल देते, सोचो जरा, 1 टन गन्ने की लारी के साथ 12 से 14 टन तक रहती, तो ऐसे 5 लारी भरे हुए सारे गन्ने से, क्योंकि आप लोग गन्ने के एरिया में रहते, आपको आइडिया मिलता, इसलिए गन्ने का एग्जाम्पल दिया मैं, तो लारी के ऐसे 5 लारी अगर से लोड ट्रांसफर कर रहे, तो कितना होता ना, उसको बोलते 60 टन। तो ऐसा सारा लोड कभी कभी एक पाइल लेता, तो मतलब पाइल कितना बड़ा रहता होगा, इसको इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होता होगा, ये सोचो। जो पढ़ना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली पाइल को इरेक्ट करना या पाइल को बोर करना इज नॉट दैट मच इजियर, इज नॉट दैट मच इजियर। तो पाइल फाउंडेशन क्या है, ये कंक्रीट का सिलेंडर रहता, जनरली सिलेंडर शेप रहता, आप चाहे तो स्क्वायर शेप भी ले सकते, किसी भी शेप का, क्यूबाइड उबाइड का शेप भी ले सकते हैं, तो इट विल टेक द एंटायर लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। और जहां पर बहुत डीप स्ट्रैटम है, ऊपर सब नरम 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 सॉइल है, और आपको डीप स्ट्रैटम के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है लोड ट्रांसफर करने, क्योंकि नरम सॉइल में आप अपना लोड ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको वहां तक जाना है फाउंडेशन, जहां पर आपको उतना डीप जाना है, उतना डीप जाना है जहां पर हार्ड स्ट्रैटम है, तो इसको बहुत डीप जाना पड़ता है। इन सच केसेस पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड। So a pile foundation can be used for transfer superstructure loads to stronger soil layers deep underground. Okay. So when these are used, pile foundation is generally used when simple spread foundation at a suitable depth is not possible. तो स्प्रेड फाउंडेशन मतलब जरूरी, मतलब पॉसिबल नहीं है, जहां पर बेरिंग कैपेसिटी कम है और ग्रेटर डेप्थ में आपका अगर से जा रहा है, तो वहां ये प्रेफर करते हैं। वाटर लॉग्ड सॉइल में भी हो, जहां पर पानी से ज्यादा हुआ, सॉइल भीग गया है, वाटर टेबल ऊपर है, वहां पर भी हम पाइल फाउंडेशन प्रेफर करते हैं। ओके, सो वेरी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देयर आर देयर, दैट आई विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। सो इसको कैसा हम लोग एरेक्ट करते हैं, ड्राइविंग द हैमर से, बड़ा हैमर रहता है, हैमर मतलब हथौड़ा, आप कीला मारने का हथौड़ा ही कितना बड़ा रहता, याद रखो, एक कीला, दीवार को कीला मारने का है, नेल, कीला मतलब नेल, आप पता नहीं मराठी में क्या बोलते हैं, उस कीले को मारना है तो हैमर कितना रहता, तो याद रखो इतना बड़ा पाइल है, एंड वी वांट टू आई मीन इरेक्ट इट दैट, so then it is very difficult। तो बहुत बड़े बड़े हैमर से कर सकते हैं हम इसको, या वाइब्रेटिंग करके कर सकते हैं, या आगरिंग करके कर सकते हैं, कैसा कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट वी विल लुक आफ्टरवर्ड्स।
So this is about pile foundation. So what are the functions of pile? Piles perform the functions of transferring load from the superstructure through weak compressible stuff through water or to stiffer or more compact or less compressible soil or onto the rock. Very important function is there. सबसे important function क्या है कि ऊपर जो रहता है आपका सॉइल सारा वीक रहता, नरम रहता, जैसा 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 आप खोदते जाते वैसा वैसा डीप जाने के बाद, काफी डीप जाने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता। तो ऊपर जो भी सॉइल है सारा वो कैसा है, वीक सॉइल है। तो ये सॉइल वीक रहने से अगर से हम पाइल वहां पर इरेक्ट कर दिए, वहां पर बिठा दिए हैमर के साथ, तो वट एवर द लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर विल बी देयर, नो, सो दैट pile entirely, that pile will take the load, that pile will take the load। ठीक है, तो वैसे लेस कॉम्प्रेसिबल होके ये पाइल सारा लोड लेता। They may be carried to carry uplift force when used to support tall structures। Of course यहाँ पर लोड उठाने, जैसा कि लोड लेने के लिए भी है, लोड उठाने के लिए भी है। मैराइन स्ट्रक्चर्स में भी यूज कर सकते हैं जहां पर लैटरल लोड्स आते, वेव्स आते। हाँ, मतलब वर्टिकल फोर्स रहने दो, हॉरिजॉन्टल फोर्स रहने दो, ब्रिजेस में, पियर्स में, अबिटमेंट्स में, सच सब जगह पर हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। Everywhere we use a pile foundation। I hope now you are clear with what is a pile foundation। You are very much clear with what is a pile foundation। ठीक है, तो okay, so this is pile foundation। ठीक है, pile is a type of deep foundation। Pile is a type of deep foundation, deep foundation। Now pile foundation की इतनी जरूरी क्यों है, why it is needed, that we have to study now, that we will study now। Just a minute। Okay, so one by one I will take you। What is the necessity of pile foundation? Means when the pile foundation is preferred। So first preference I will tell you, when the upper soil layer is highly compressible, when the upper soil layer is highly compressible and too weak to support the load transmitted by the superstructure, piles are used to transmit the load to underlying bedrock or standard। मतलब क्या है कि अगर से देखिए ऊपर सुपरस्ट्रक्चर है, नीचे फाउंडेशन है, फाउंडेशन से पहले सॉइल रहता, अगर से ये सॉइल वीक है बहुत, ये सॉइल बहुत वीक है, कॉम्प्रेसिबल है, ये लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता सुपरस्ट्रक्चर को, तो इस लोड को, जो सुपरस्ट्रक्चर का लोड है, उसको नीचे हार्ड रॉक पे ट्रांसफर करना ना, उसको हार्ड रॉक पे ट्रांसफर करना ना, तो ये काम कौन करता, ये पाइल फाउंडेशन करता। Who does this work? This work is done by pile foundation। This work is done by pile foundation। नेक्स्ट इज सेटलमेंट जो रहता ना, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट को भी पाइल फाउंडेशन कम कर देता। वन ऑफ द एडवांटेज इज टू रिड्यूस द डिफरेंशियल सेटलमेंट। When the plan of the structure is irregular relative to its outline and load distribution, it would cause non-uniform settlement if a shallow foundation is constructed। A pile foundation is required to reduce differential settlement। मतलब अगर से सेटलमेंट बहुत होने वाला है, सेटलमेंट इज वेरी डेंजरस, और उसमें नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट तो और ज्यादा डेंजरस है, तो अवॉइड दिस वन पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड। To avoid this one, pile foundation is used। Pile foundation used। Okay, so now next is pile foundations are required for the transmission of structural loads। Okay,
पाइल फाउंडेशन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स टू डीप वाटर टू अ फर्म स्ट्रेटम। मतलब वाटर बाउंड स्ट्रक्चर में भी, स्पेशली ब्रिजेस विजेस जहां पर है, नदी है, समुंदर है, वहां पर भी अगर से आप लोड को ट्रांसफर करना है तो देयर आल्सो वी यूज पाइल फाउंडेशन। देयर आल्सो वी यूज pile foundation. So now till now the things which are clear to you know what is shallow foundation, what is deep foundation. Deep foundation में टाइप कौन कौन से है, उसमें एक टाइप है, बहुत सारे हैं, पियर है, ग्रिलेज है, कैजान है, उसके बाद वेल फाउंडेशन है, तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग फाउंडेशन है। बट इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इट इज पाइल फाउंडेशन। तो पाइल्स कैसे रहते हैं मैं आपको बता चुका हूं, ये सिलिंड्रिकल टाइप के कंक्रीट के स्ट्रक्चर रहते हैं, बोल्डर होते बड़े बड़े, और यहाँ लोड ट्रांसफर करते, लोड ट्रांसफर कर सकते। तो पाइल के मतलब नेसेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन जरूरी कब कब है, तो पहला नेसेसिटी मैं बोला आपको, व्हेन द अंडरलाइंग आई मीन सॉइल बिलो द ग्राउंड इज टोटली लूज इन द बिगिनिंग, एंड टू transfer the load of the superstructure from such weak soil to the hard stratum, piles are used. So pile foundations are used. So when the plan of the structure is irregular relative to its outline and load distribution, it would cause non-uniform settlement if shallow foundation is constructed. Non-uniform settlement if shallow foundation is constructed. A pile foundation is required to reduce differential settlement. Second important thing is which is needed is which was very much needed is uniform. So pile foundation avoids the pile foundation avoids the avoids what? So non-uniform settlement. It avoids the non-uniform, non-differential settlement. And finally, when the structure is going to be constructed in water also, there to transfer the load to the foundation from the water is also pile foundations are used. Pile foundations are used. So I hope now what is pile foundation, what is its necessity, things are clear to you. Now the question is, आपको as it is MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो MCQ टाइप रहने से तो यहाँ पर तो आप मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स तो पूछता नहीं, बड़े बड़े प्रॉब्लम, तो ये छोटी छोटी चीजें पूछता पाइल्स के, आपको पूरा पता होना चाहिए। कभी कभी देखिए MCQ टाइप पे डिफिकल्ट होता, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया बहुत इररिलेवेंट है, देखो अगर से इस टाइप के क्वेश्चन रहते तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछता, लेकिन यहाँ पर MCQ में कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी पूछी जा सकती है, छोटी से छोटी चीज भी पूछी जा सकती है। सो यू शुड बी क्लियर विद द थिंग्स, यू शुड बी क्लियर विद द थिंग्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आई विल टेल यू क्लासिफिकेशंस ऑफ पाइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी 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 चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ में यही पूछता। अगर से थ्योरी रहता तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, वो तो आप दन याद रख के लिख सकते हैं, लेकिन अंदर के पॉइंट्स पता रहना पड़ता आपको। ये पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल कैसा बिहेव करता, ये लोड को कैसा ट्रांसफर करता, ये आपको पूरी तरह पता होना चाहिए, ये आपको पूरी तरह पता होना चाहिए। गॉट इट? सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स करेंगे, तो सबसे पहले हम पाइल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके शेप के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, उसको कैसा आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके हिसाब से, या वो क्या काम करता है उसके हिसाब से, या वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस हिसाब से। तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग द पाइल फाउंडेशन, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग द पाइल फाउंडेशन। Okay, so one paper is missing here, so I will give that one afterwards. उसके नोट्स मैं आपको बाद में देता हूँ, फिलहाल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुनते जाओ। So पहले हम क्लासिफाई करेंगे उसके काम के हिसाब से, what type of function it is doing, ये पाइल क्या काम कर रहा,
उस काम के हिसाब से हम, अब जैसा कि आप काम के हिसाब से और पूरे स्टाफ को आप बोल सकते हैं। सो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये क्लर्क है, ये स्कॉलरशिप सेक्शन के क्लर्क है, ये एग्जामिनेशन सेक्शन के क्लर्क है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के क्लर्क है, ये आपके स्कॉलरशिप के फाइनेंस रिलेटेड क्लर्क है। वैसे टीचिंग में भी बोल सकते हैं आप, सिविल के टीचर है, ये मैकेनिकल के टीचर है। फिर सिविल में बोल सकते हैं आप स्ट्रक्चर पढ़ाते, ये जियोटेक पढ़ाते, क्या आप बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाते, सेकंड ईयर को पढ़ाते, फाइनल को पढ़ाने वाले, थर्ड ईयर को पढ़ाने वाले। ऐसा जैसा हम क्लासिफाई करते जाते वैसा ही हम पाइल्स को भी क्लासिफाई करते जाएंगे। We will move on. I mean classifying these piles. Okay, so piles में देखिए सबसे पहले हम फंक्शन के हिसाब से पाइल्स को क्लासिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे? फंक्शन के हिसाब से पाइल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है फंक्शन के हिसाब से? सबसे पहले एंड बेरिंग पाइल्स, दूसरा फ्रिक्शन पाइल्स, तीसरा कॉम्पैक्शन पाइल्स, चौथा एंकर पाइल्स, पांचवा टेंशन पाइल्स, सिक्स्थ इज शीट पाइल, सेवंथ इज बैटर पाइल्स, then it is fender piles, and finally laterally loaded piles. Laterally loaded piles. So there are various types of classification of piles, and according to function, the piles are classified as end bearing piles, friction piles, compaction piles, anchor piles, tension piles, sheet piles, batter piles, fender piles, laterally loaded piles. Laterally loaded piles यहाँ पर फिगर नहीं है तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल है। Anyway, I will tell you what is end bearing pile, पहला जो टाइप है, what is end bearing pile and what is friction pile. What is friction pile? अब देखिए मान के चलिए यहां पर ये एक पाइल है और इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर देखो प्लीज इस बात को नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। आप पास फेल का छोड़ दो फिक्र, जो मैं बता रहा हूं आप अगर से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो टॉपिक आपको मालूम हुआ, आप कहीं और कोचिंग लिए अगले साल दिल्ली हैदराबाद जाके या घर में भी आप खुद पढ़े तो आपको पता चलता। टीचर कैसा भी रहने दो, टीचर बोले सो बात ही और रहती। Okay, so basically there are two types of according to function. One is end bearing pile, second is friction pile. होता क्या है मैं आपको बताया था, मान लीजिए ये है आपका पाइल सिलिंड्रिकल शेप का, इसको हम जमीन में धक देते, ऊपर से लोड सुपर स्ट्रक्चर का इसके ऊपर डालते। ओके, जब ये लोड आप डालते, ये लोड को रेजिस्टेंस दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसा होता, देखिए ये जो आपका ये पाइल है, ये पाइल किससे सराउंड हुआ है? सॉइल से सराउंड हुआ है। सॉइल पाइल के अपोजिट पूरा पाइल किसमें कवर हुआ है? इस ऊपर नहीं रहता पाइल, ये ग्राउंड में रहता। तो पाइल इज सराउंडेड बाय सॉइल, पाइल इज सराउंडेड बाय सॉइल। तो जैसे ही whenever the load of the total load of the superstructure comes on the pile, no, तो पाइल कैसा लोड रजिस्ट करता ये आप अच्छी तरह देख लो, सुन लो। ये तो इसको दो तरीके से करता, वन इज एंड बेरिंग पाइल, दूसरा फ्रिक्शन पाइल। एंड बेरिंग पाइल मतलब क्या होता है, अगर से आपका सिलेंडर टाइप का पाइल है, ऊपर जो सर्कलर क्रॉस सेक्शन रहता ना, वहां पर आप लोड कर रहे हैं, तो सॉइल को लेते हुए लोड क्या करता, लास्ट में नीचे जो रहता ना, नीचे का पोर्शन, वहां से हार्ड स्ट्रैटम को ट्रांसफर करता। लोड नीचे का जो डायमीटर है सर्कल का, ऊपर के डायमीटर ऑफ द सर्कल को आप लोड लगाते, और ट्रांसफर कहां से होता, सिलेंडर के नीचे के टाइप का जो सर्कुलर सेक्शन है ना, वहां से ये ट्रांसफर हो जाता। सो सच टाइप्स आर कॉल्ड एंड बेरिंग पाइल्स। व्हाट सच पाइल्स आर कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेरिंग पाइल, सारा डिजाइन इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। व्हाट इज एंड बेरिंग पाइल, व्हाट इज फ्रिक्शन पाइल। So regarding end bearing pile, I will read here whatever it is given. End bearing piles are those which are driven into the ground until a hard stratum is reached. These piles act as pillars supporting the superstructure and transmitting the load down to the level at which can be safely borne by the ground. तो end bearing pile क्या होता है बोलूं मैं आपको, ये हम ग्राउंड में इसको मारते, मतलब हैमर करते, कब तक, जब तक हार्ड स्ट्रैटम नहीं होता।
नीचे जब तक हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट सॉइल में इसको रख के, ये पाइल को रख के मारते हैं, हैमर करते हैं। उसके बाद जब तक हार्ड नहीं रहता वो दबते दबते जाता, जैसे हार्ड आता वो रुक जाता, और जो ऊपर का लोड है दैट इज ट्रांसफर। तो मैं आपको बोला था वट एवर द लोड इज कमिंग ऑन द पाइल, नो, सो दिट इज ट्रांसफर्ड बाय टू वेज। वन इज एंड बेरिंग पाइल, सेकेंड इज फ्रिक्शन पाइल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आराम से जा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोले से बोला, ये एक चैप्टर में डिटेल में जाता हूँ, उसके बाद मैं सिलेबस खत्म कर देता हूँ। सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जितना मैं ज्यादा पढ़ा रहे, आपको जितना समझ में आ रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द थिंग इज द लोड इज ट्रांसफर्ड from the superstructure to the hard stratum of the soil by two methods, and one is end bearing piles. End bearing piles, as the name suggests itself, end bearing pile, ऊपर जो भी लोड आता पाइल के ऊपर, वो लोड क्या है, वीक सॉइल को लेते हुए नीचे का जो सर्कल रहता ना, नीचे का एंड रहता ना, नीचे का डायमीटर, उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाता, कहां पर, हार्ड स्ट्रैटम के ऊपर। और ऐसे पाइल को बोलते एंड बेरिंग पाइल। पाइल को क्या बोलते हैं, एंड बेरिंग पाइल। एंड सेकेंड इज फ्रिक्शन पाइल, सेकेंड इज फ्रिक्शन पाइल। सेकेंड इज फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल क्या होता है बोलो मैं आपको, देखिए जैसा ही आपका सिलेंडर है, इसके बाद 1 मिनट के बाद रुक जाता, फिर 2-3 मिनट के बाद रिजॉइन हो जाता। हाँ, मैं आपको एंड बेरिंग पाइल बताया। एंड बेरिंग पाइल में क्या होता, लोड आप ऊपर लगाते, पाइल के ऊपर सुपरस्ट्रक्चर का लोड ऊपर आता, एंड दैट लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द बॉटम ऑफ द पाइल, एंड से होता। तो इट इज सच पाइल्स आर कॉल्ड एंड बेरिंग पाइल्स, एंड बेरिंग पाइल्स। लेकिन एक और टाइप के पाइल्स है, दीज आर कॉल्ड फ्रिक्शन पाइल्स, दीज आर कॉल्ड फ्रिक्शन पाइल्स। देखिए फ्रिक्शन पाइल में क्या होता, आपका जो लोड है, पाइल है, हम इसको ग्राउंड में रखे सो है, सो दिस पाइल इज सराउंडेड बाय सॉइल, और ये जो सराउंडिंग सॉइल है इसमें और पाइल के मटेरियल में भी फ्रिक्शन होता, एंड this friction also resist the load coming on the pile। ये साइड में ये कैसा एक्ट करता है, along the circumference, जो भी सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस रहता है ना उसका। तो दिस इज द सेकेंड टाइप एंड इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन पाइल्स, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन पाइल्स। सो पाइल्स में रेजिस्ट करने के दो तरीके हैं, एक है एंड बेरिंग पाइल, दूसरा है फ्रिक्शन पाइल। याद रखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस एंड बेरिंग पाइल एंड फ्रिक्शन पाइल। सो बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं कि एंड पाइल्स कैसा एक्ट करता है, एंड बेरिंग पाइल क्या है और फ्रिक्शन पाइल क्या है। एंड बेरिंग पाइल्स मींस सिलेंडर, जो भी सिलेंडर के है, जो भी पाइल है